Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 7th math subject. Dear students, as you all know that we are doing chapter data handling, means ਅਸੀਂ new book ਦਾ chapter number 3 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 3.1 ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 3.2 ਓਕੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡ ਮੀਡੀਅਨ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੋਡ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੱਧਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਧਿਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੱਧਿਕਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹਨ। ਮੱਧਮਾਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਲਕ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਬਹੁਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਖਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਲਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ? 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਕਰਮਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ 7, ਦੂਸਰੀ ਦੇ 6, ਤੀਸਰੀ ਦੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 4, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 7, 7, 8, 9, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ? 10 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਲਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਖਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਖਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸਦਾ ਬਹੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖੋ 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 2 3 3 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਜੀ। तो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਚੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 3.2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਕ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮੀਨ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੀਡੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਾ ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ। मीडियन भी आप कर लांगे पर मीडियन बारे हले मैं गल नहीं की। तो एक साइड ते देखो मध्यमान लिखा है, तो मध्यमान मीन होंदा है। तो मीन इहदा किद्दां फाइंड आउट करांगे? तुसीं प्रीवियस क्लास दे विच जिहड़ी साडी 3.2 एक्सरसाइज दी क्लास लगी सी उस विच पढ़िया सी मध्यमान कड्ढण दा तरीका की हुंदा है? सारे प्रेखणां दा जोड़, ठीक है। मध्यमान किद्दां कढदे आ, मतलब मीन किद्दां फाइंड आउट करदे आ? सारे प्रेखणां दा जोड़, ठीक है। प्रेखणां दा जोड़ यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जरवेशंस डिवाइड बाय प्रेखणा दी कुल गिणती, प्रेखणा दी कुल गिणती। ते विद्यार्थियों इत्थे हुण प्रेखण किहड़े-किहड़े ने? देखो एक हैगा 3, दूसरा 1, फिर उस तो बाद 5, उस तो बाद 6, उस तो बाद है 3, उस तो बाद 4,
ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ 5। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, डिवाइड बाय किन्ने प्रेखण ने 1 2 3 4 5 6 ते 7। ठीक है, 7 प्रेखण साडे को ने। 3 जमा 1 4 4 ते जमा 5 किन्ने हो गए इत्थे 4 जमा 5 9 9 जमा 6 15 15 ते 3 18 18 ते 4 किन्ने हो गए बच्चों 22 22 ते 5 किन्ने हो गए 27। ठीक है, तो 27 ये जोड़ आ रहा 27/7 बराबर 27/7 जो तुसीं इहनूं डिवाइड करोगे 3.86 तुहाडा आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन सी। ओके, तो आई थिंक क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ पहला क्वेश्चन। आओ हुण असीं सैकेंड सम वल वधदे हां। इहदे विच बच्चों असीं हुण बहुलक फाइंड आउट करना है। ठीक है, की फाइंड आउट करना है? बहुलक। सैकेंड क्वेश्चन, हेठां दित्तियां संख्यावां विच बहुलक पता करो। बहुलक दा मतलब हुंदा है मॉड, इंग्लिश मीडियम मॉड। मॉड असीं फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आओ मॉड फाइंड आउट करदे हां। सब तो पहला तुसीं दिते हुए प्रेखणां नूं बच्चे वाधे क्रम दे विच लिखोगे ते बच्चों वाधे क्रम च लिखण ते ये ऑलरेडी वाधे क्रम दे विच ने। किहड़े-किहड़े हैगे ने देखो तुसीं इहनूं नोट करो किहड़े-किहड़े आ। पहला 2 लिखिया होया, फिर 2 है, फिर 2 है, उस तो बाद अगे है 3, फिर है 4, फिर 5, फिर 5 6 6 ते 8। ठीक है, हुण तुसीं देख सकदे हो इत्थे ਜਿਹੜਾ 2 है वो सब तो वध बार है। ठीक है, तो 3 ਜਿਹੜਾ है 3 कितनी बार आया, सॉरी 5 5 भी इत्थे बच्चों 5 1 2 3 5 भी 3 बार है। ठीक है, तो 5 सब तो वध बार जिहड़ा है वो किहड़ा आ गया? सब तो वध बार किहड़ी संख्या आ रही? एक तो 2 आ रहा, कितनी बार है? 3 बार। एक 5 आ रहा, वो भी 3 बार आ रहा। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब बच्चों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ 5 दोनों बहुलक ਹਨ। ठीक है, इस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ 2 ਅਤੇ 5 दोवें। ठीक है, दोवें की हन? बहुलक हन। बहुलक का मतलब ये दोनों बच्चों मॉड हन। जो बराबर आ जान तो फिर दोनों नूं लिखना है। अगर एक हुंदा जिद्दां मैं इत्थे 5 नूं एक बार 2 बार लिखिया सी ते एक रह गया सी तो ਇਹਦਾ मतलब फिर 2 आना सी। पर 5 ते 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 बार आ रहे ने। इस करके ਇਹਦਾ मॉड ਜਿਹੜਾ है वो कितना हो गया? मॉड हो गया बच्चों ਇਹਦਾ मॉड हो गया 2 ते 5। थर्ड है, थर्ड विच की है एक गणित की एक परीक्षा विच 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ने हेठ लिखे हैं। दिते हुए अंकड़ियां दा मध्यमान बहुलक ਅਤੇ मध्यिका पता करो। ठीक है, तो विद्यार्थियों सब तो पहला तो देखो मध्यमान बारे तुहानू पता है, बहुलक बारे तुहानू जानकारी हासिल हो गई है, तो असी मध्यिका बारे भी जानकारी जिहड़ी है वो हासिल कर लैंदे हाँ। ठीक है, तो मध्यिका बारे जानकारी मैं तुहानू नैक्सट पेज से दे देना पहला, फिर उस तो बाद असी गल करांगे। मध्यिका तो भाव है बच्चों मीडियन। ठीक है, तो मीडियन बच्चों टॉपिक जिहड़ा हैडिंग जिहड़ा वो तुसीं दे लो मीडियन। मीडियन एक्चुअल दे विच की हुंदा देखो मीडियन, मीडियन एक्चुअल दे विच की है, इनू असी की कहने आ मध्यिका। ठीक है, मध्यिका का मतलब देखो मध्य वैल्यू, बस इन्ना याद रखना, मध्य वाली वैल्यू यानी कि मध्य जी की हुंदा है सेंटर वाली वैल्यू। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसीज ने तीनों। मान लो तुहाडे कोल सपोज असी कोई 5 व्यक्ति ने। ठीक है, 5 व्यक्तियों का भार जिहड़ा आ मैं इत्थे लिख देना। ठीक है, की लिख देना? 5 व्यक्तियों का भार लिख देना। एक दा विचों इत्थे मान लो कितना भार है, एक का हैगा 50 किलो, दूसरे का है बच्चों 55 किलो, तीसरे का है 56 किलो, चौथे का है 57 किलो, तो पंजवें का हैगा मान लो 60 किलो। ठीक है, केजी किलोग्राम। ओके, तो असीं इहनूं वाधे क्रम दे विच ऑलरेडी लिख लिया है। तुसीं पहला काम जिहड़ा आ जदों भी अंकड़ियां दा प्रबंधन करना है बच्चों वाधे क्रम दे विच जरूर लिखना है। वाधे क्रम तो भाव हुंदा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये काम जरूर करना है असेंडिंग ऑर्डर। इन्ना तुहाडा डाटा जिहड़ा है वो वधिया तरीके नाल अरेंज हो जाता है, तो उहनूं फिर समझना जिहड़ा वो सौखा हो जाता। हुण इहदे विच बच्चों मध्य वैल्यू किहड़ी होई? असीं सिर्फ वो संख्या उन्हां वैल्यूज़ दा मध्यमान कढना है जिस विच प्रेखणा की गिणती टांक होवे। ठीक है, प्रेखणा की गिणती कितनी होवे? टांक। सिर्फ तुहानूं यही सिलेबस च ने टांक होवे। टांक का मतलब हुंदा ऑड। ठीक है, ये विच देखो 5 वैल्यूज़ ने, इहदे विचों 7 वैल्यूज़ वाला भी हो सकता, 9 वाला भी हो सकता। ठीक है, 11 वाला भी हो सकता। मतलब तुहानूं सिर्फ टांक वैल्यूज़ यानी कि टांक प्रेखणा की गिणती का ही तुसीं उन्हां दी ही मीडियन जिहड़ा यानी कि मध्यिका जिहड़ी है फाइंड आउट करनी है। हुण इहदी मध्य वैल्यू किहड़ी होई दसो, तुसीं दसना है बच्चों। देखो इहदे विच इधरों एक छड़ दिओ, इधरों आपां 60 छड़ दिते, इधरों 55, इधरों 57, किहड़ी रही सेंटर दे विच 56। तो 56 इत्थे बच्चों की आ गई? 56 इस अंकड़ियां दी, इन्हां अंकड़ियां दी मध्यिका है। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू
समझ गए, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू जिहड़ी है उन्होंने असीं की आखदे हां मध्यिका। तो तीन चीज़ां हो गईयां, एक हो गया मध्यमान, सारे विद्यार्थियों को क्लीयर है मध्यमान किद्दां कढदे सी, मध्यमान मतलब कि मीन वैल्यू, ठीक है। सारे प्रेखणां दा जोड़ बटा प्रेखणां दी गिणती, ठीक है। उस तो बाद हुण गल होगी मध्यिका दी, मध्यिका का मतलब हो गया मीडियन जिहड़ी कि सेंट्रल वैल्यू होगी। एक हुणे असीं कीता है बहुलक, बहुलक का मतलब जिहड़ी कि सब तो वध वार जिहनूं असीं की कहने आ मॉड, जिहड़ी प्रेखणां दे विच सब तो वध वार रिपीटिड मॉड दे विच वैल्यू होवे उहनूं असीं बहुलक आखदे हां। बहुलक देखो बहु दा मतलब ज़्यादा, जिहड़ी बहु दा मतलब तुसीं याद की रखना है ज़्यादा, जिहड़ी संख्या ज़्यादा वार उत्थे रिपीट कर रही है वो बच्चों दा की हो गया मॉड हो गया। ओके, तो आओ हुण विद्यार्थियों इत्थे जिहड़ा थर्ड क्वेश्चन सीगा इहदे बारे हुण असीं गल करांगे। ते देखो विद्यार्थियों गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, हुण तुसीं ये फटाफट देखो कर ही लेना, मैनूं लगदा किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मध्यमान कढ़ना है तो मध्यमान मैनूं नहीं लगता कोई बच्चा इदां दा होएगा जिन्हों ना पता होएगा किद्दां कढ़ना है। मध्यमान सारे प्रेखणां दा की कर देना है जोड़, जोड़ करके बटा करना है संख्यावां नाल, मतलब किन्ने विद्यार्थी हैं 15 विद्यार्थियों नाल डिवाइड कर देना है। सो मध्यमान किवें कढूंगे, ये देखो 19 जिहड़ा है वो इन्हों सब तो पहला तुसीं इदां करो, पहला तो असेंडिंग ऑर्डर विच लिख लो, ठीक है, वाधा क्रम, ताकि तुहाडा काम सौखा हो जाए। वाधे क्रम दे विच यानी कि असेंडिंग ऑर्डर दे विच जो तुसीं लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर दे विच बच्चों देखो 5 सब तो छोटी वैल्यू है जिहड़ी कि इत्थे लिखोगे, फिर 9 आ जाना, फिर उस तो बाद बच्चों 10, उस तो बाद 12, ठीक है, उस तो बाद की आ रहा देखो तुसीं लभ लैणे ने 15, फिर आ गया 16, 16 तो बाद बच्चों कितना आ गया 19, 19 तो बाद आ गया 20, 20 तो बाद फिर 20 हैगा, फिर उस तो बाद बच्चों फिर 20 है, 20 कितनी बार है देखो 20 तुहानूं 4 बार मिलेगा, ठीक है। तो इत्थों तुहाडा क्लीयर हो गया, एक आंसर दा क्लीयर है कि इहदा बहुलक जिहड़ा वो 4 ही आना, ठीक है। उस तो बाद बच्चों 23, ठीक है, उस तो बाद विद्यार्थियों 24, उस तो बाद 25, उस तो बाद है बच्चों फिर 25, ठीक है। तो असीं इहदे विच सब तो पहला मध्यमान कढ़ना है। मध्यमान मतलब कि प्रेखणां दा जोड़, ठीक है, मध्यमान दा मतलब मीन हुंदा है, प्रेखणां दा जोड़ सम ऑफ ऑब्जरवेशनस, ठीक है। इत्थे मैं लिख देना प्रेखणां दा जोड़, ओके, प्रेखणां दा जोड़ बटा संख्या, संख्या गिणती कितनी है उत्थे, गिणती थले गिणती 15 आ जानी। तो सारियां नूं जोड़ दो, सारियां नूं, इन्हां नूं सारा जोड़ डाटा तुहानूं दिता है, इन्हां सारियां दा जोड़ करके विद्यार्थियों तुहानूं प्राप्त होएगा 263, इहनूं जोड़ कर लेना है 263 ते डिवाइड बाय 15, जदों तुसीं इहनां नूं माइनस करोगे ये आ जाना 17.53 इसका आंसर आएगा मध्यमान, ठीक है। मध्यिका में तुहानूं 10 जी वैल्यू है, सॉरी बहुलक, ठीक है, बहुलक की गल कर लेने, तो बहुलक इहदा बच्चों सीधा ही आ गया, बहुलक इहदा आंसर आ जाएगा, बहुलक कितना हो गया 20, ठीक है। बहुलक किहड़ा है 1 2 3 4 बार संख्या हो रही, वध तो वध यही है, तो ये उहदा बहुलक हो गया। बहुलक मतलब बहु दा मतलब ज्यादा, ठीक है। उस तो बाद विद्यार्थियों नैक्सट है मध्यिका, मध्यिका किहड़ी सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू लई करन दा सौखा तरीका यही हुंदा तुहानूं, क्योंकि इक्को एक ऑड वाली सिलेबस चा इधरों एक छड्डो, एक इधरों छड्ड दिओ, एक इधरों छड्डता, एक इधरों छड्डती, एक वैल्यू ये छड्डती, एक वैल्यू ये छड्डती, ये वाली छड्ड दित्ती, इधरों ये छड्डती, ठीक है। इदा एक एक वैल्यू जिहड़ी है दोनों साइड तो छड्डी जानी, ये छड्ड दित्ती, आ इहदे नाल कट गई, बचिया किहड़ा ये वाली वैल्यू। तो इहदा बच्चों बहुलक जिहड़ा है वो कितना आया, बहुलक नहीं सॉरी मध्यिका जिहड़ी है वो कितनी आई है, मध्यिका की वैल्यू आ गई बच्चों वो भी 20 आ गई, ठीक है। तो मध्यिका भी इहदी की होगी 20 होएगी, ठीक है, लग गया पता। तो सानू बच्चों इत्थों ये पता लगा कि ना इहदे विच तीनों बराबर हैगे ने, देखो मध्यिका ते बहुलक बराबर आ पर मीन उहदा बराबर नहीं हैं। तुहानूं ये भी पूछा है कि ये तीनों बराबर हैं, तो तुसीं की लिखना है नहीं है तीनों बराबर नहीं हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये बच्चों तुहाडा क्वेश्चन नंबर 3 सीगा, आई थिंक क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। नैक्सट बच्चों असीं जावांगे हुण क्वेश्चन नंबर किहड़ा है 4th वाल, ठीक है। तो 4th वाला क्वेश्चन मैं जी तुहानूं कहदा कि तुसीं आप करना है, तो बच्चों मैनूं नहीं लगता कोई बच्चा इदां दा होएगा कि जिहड़ा नहीं कर पाएगा। ये आंसर बच्चों आराम नाल कर लेना तुसीं। 15 विद्यार्थी ने किलोग्रामां 'च भार दिता होया उन्हां दा। पहला इनू वाधे क्रम च लिखो, फटाफट वाधे क्रम दे विच लिख लेना, ठीक है। क्रमबंद करन लई वाधे क्रम दे विच लिखीदा हुंदा है। वाधे क्रम दे विच लिखण तो बाद तुसीं देख लेना इहदे विच किहड़ा बहुलक है, ठीक है। तुहानूं बहुलक पूछा है ते उहदी मध्यिका पूछी है, ठीक है। तो उस तो बाद
ਇਹ ਦੇਖਿਆ है कि ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਲਕ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਲਕ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਲਕ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे दस दिना, इत्थे 38 जिहड़ा है 1 ते 2, ठीक है, ते 3 बार 38 आ रहा। इदां ही जे तुसीं ध्यान नाल देखो 43 वाल, 43 देखो हुण 43 1 2, ठीक है, 2 बार ते 3 बार 43 भी 3 बार आ रहा। ठीक है, तो इन्हां मतलब ये दोनों ये बहुलक हो गए। ठीक है, तो मध्यिका दी सेंट्रल वैल्यू होगी जो तुसीं इन्हां नूं अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वाधे क्रम दे विच लिख लेना है। तो विद्यार्थियों की मध्यिका जिहड़ी 40 ग्राम आऊगी। ठीक है, आंसर नोट कर लो, मध्यिका 40 ग्राम आऊगी किलोग्राम। तो विद्यार्थियों बहुलक जिहड़ा है वो दो आए ने, किहड़े-किहड़े, एक आया है 38 तो दूसरा है 43, दोनों ही 3 बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगे तुसीं इहदा आंसर लिखना कि हाँ ये बहुलक जिहड़े ने वो जिहड़े ने एक तो वध बहुलक हन। बहुलक एक तो वध हो सकते हैं। ठीक है, मध्यिका जिहड़ी है वो इत्थे एक ही होनी है। ठीक है, मीन भी एक ही होगा, ये याद रखना। बहुलक जिहड़े ने तुहानूं जो सिलेबस ने। ओके, 5th सम वाल वधदे आ हुण। आई थिंक क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ पर अरेंज करना है जिद्दां ਅਸੀਂ प्रीवियस ਕੀਤਾ ਸੀ उदां ही ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ भी करना है। ये वाला वाधे क्रम च लिखण तो बाद ही ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करने आ ਜਿਹੜੇ क्रॉस लगाए आ ये सिर्फ समझण ਲਈ है, पेपर च नहीं इदां लिखणे। ठीक है, पेपर च आप ਤੁਸੀਂ मध्यिका डायरैक्टली फाइंड आउट कर देनी है, अपना रफ काम ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। नैक्सट वाल वधदे आ, क्वेश्चन नंबर 5th वाल। 5th विच हेठां दिते अंकड़ियां दा बहुलक ते मध्यिका पता करो। अगेन बच्चों सेम टाइप का ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन तां पाए ने ताकि तुहानूं आइडियाज़ हो जाण। ठीक है, 5th क्वेश्चन वाल वाधे होए बच्चों असीं करांगे इहनूं। इहदे विच पहलां वाधा क्रम लिख लो, ये छोटा होने करके मैं कर दिंदा। 12 12, उस तो बाद 13, फिर 13 आएगा। ठीक है, 13 2 बार है, फिर 14 14 3 बार है, उस तो बाद बच्चों 16 तो उस तो बाद 19। ये वाधा क्रम हो गया इन्हां अंकड़ियां दा। हुण इहदे विच 14 जिहड़ा वो कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, 14 कितनी बार है, 3 बार। तो इहदा बहुलक जिहड़ा आ यानी कि इहदा मीडियन जिहड़ा है वो कितना आ गया, वो आ गया 3, वो आ गया 14 जिहड़ा कि 3 बार है। ठीक है, ते मध्यिका फाइंड आउट करनी है। मध्यिका लई की कीता, क्रॉसिंग मैं तुहानूं दस्सिया ही, इदां अंक छड्डदे जाना है, एक अग्गेों एक पिछों। ठीक है, जिहड़ा सेंटर च बच गया वो की हो गई, ओदी मध्यिका होगी। ठीक है, तो यदि मध्यिका जिहड़ी है वो कितनी होगी बच्चों, वो आ जाएगा 14। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों की आ गए बराबर हो गए। ठीक है, बहुलक भी बराबर हो गया, बहुलक भी 14 तो मध्यिका भी इत्थे की है 14 हो गया। ओके, तो इत्थों क्लीयर है कि बहुलक ते मध्यिका बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6वां है, आओ ये करते हैं। 6th क्वेश्चन के अंकड़ियां का बहुलक पता करना है। तो अंकड़ियां नूं बच्चों पहला तो अरेंज करना ही औखा काम है, बाकी कोई औखा काम नहीं है। सारे बच्चे चंगी तरह सुन लो, चंगी तरह समझ लो, ताकि तुहानूं ये क्वेश्चन इदां ना होवे कि बाद में तुसीं गलत करो। तो इनू अरेंज करोगे तुसीं, अरेंज करन दे बच्चों इत्थे तुसीं नोट कर लियो। देख मैं तुहानूं थोड़ा जिहा आइडिया दे दिंदा। बहुलक ही कढ़ना है, असेंडिंग ऑर्डर च लिखो। 12 सब तो पहला छोटी वैल्यू है। ठीक है, 12 पहला लिखूगा 3 बार। ठीक है, उस तो बाद लास्ट जिहड़ी सब तो वड्डी वैल्यू इहदे विच हैगी है वो हैगी 19 एक बार। बाकी अंदर जिहड़ियां वैल्यूज़ ने तुसीं लिख लैणियां ने वाधे क्रम च। ते इहदे विच जिहड़ा 15 है वो बच्चों 15 इत्थे सब तो ज़्यादा बार आना है। कितनी बार देखो, 1 2 3 4, उस तो बाद 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैं 9 बार मैनू दिखाई देता, एक ही हैगा 10। ठीक है, तो 10 बार ये आ रहा, ਇਹਦਾ मतलब 15 ਇਹਦਾ बच्चों की है बहुलक है, 15 ਇਹਦਾ की है बहुलक है। ओके, तो ये आंसर बच्चों तुसी नोट कर लो। उस तो बाद विद्यार्थियों हुण नैक्सट तुहाडे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ने वो भी असीं कर लेने आ। MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ पहला क्वेश्चन जिहड़ा है अंकड़ियां दा बहुलक देना है। ठीक है, इन्हां अंकड़ियां दा बहुलक की है, फटाफट दस दिओ हुण जवाब ਇਹਦਾ। ये तुहानूं समझ आ ही गया होएगा। एक सैकेंड, यस, ਇਹਦਾ आंसर जिहड़ा है वो तुसीं दसना हैगा। इन्हां अंकड़ियां दा बहुलक पता करो जी बच्चों। सब तो पहला जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां अंकड़ियां दा 3 5 1 2 0 2 3 5 0 2 1 6। ठीक है, ये सारे दिते हुए ने। इन्हां दे विच बच्चों जिहड़ा आंसर ਇਹਦਾ की आएगा 2 2 जिहड़ा है तुसीं देख सकते हो, 1 2
तीन बार आ रहा तो इसका आंसर 2 आना है। ठीक है, अगला है क्रिकेटर ने 7 पारियां दे विच हेडलियां दौड़ा बनाईयां ते विचलन सीमा की है। विचलन सीमा का मतलब की सीगा रेंज। ठीक है, विचलन सीमा आपां किद्दां कढदे सी, सब तो वड्डी वैल्यू ते सब तो छोटी वैल्यू। सब तो छोटी इहदे विच बच्चों 0 है ते सब तो वड्डी बच्चों इत्थे 100 दौड़ा ने। ठीक है, 100 तो सब तो वड्डी वैल्यू माइनस सब तो छोटी वैल्यू, ये विचलन सीमा आ गई। यही सीगा ना, सब तो वड्डी वैल्यू माइनस सब तो छोटी वैल्यू, तो विचलन सीमा कितनी होगी 100। ठीक है, 100 ही आंसर आ जाना। ओके, 100 ਇਹਦਾ आंसर रेंज होएगी। ओके, अगे हैगा हेठ लिखिया विचों किहड़ा केंद्र प्रवृत्ति का एक माप नहीं है। देखो मैं हुणी एक वर्ड बोलिया सी सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी नूं बच्चों कहंदे ने केंद्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ। केंद्री प्रवृत्ति, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर यह भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र प्रवृत्ति, केंद्र केंद्र मतलब सेंट्रल। ठीक है, देखो ये तीनों ही आ, तीन तुसी सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़िया ने, किहड़ियां मध्यमान, ठीक है, बहुलक ते मध्यिका। ठीक है, ये तीनों ही बच्चों सेंट्रल टेंडेंसीज ने। सेंट्रल का मतलब होता केंद्र। ठीक है, सेंटर वालियां वैल्यूज ने। ये विचलन सीमा नहीं है। विचलन सीमा तो सीधा होंदा सब तो वड्डी वैल्यू माइनस सब तो छोटी वैल्यू, तो यदा आंसर आना विचलन सीमा यानी कि रेंज। बाकी तीनों जिहड़ियां ने वो सेंट्रल टेंडेंसीज ने, याद रखना है। ठीक है, अगले का मध्यमान कढ़ना है, सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ के बटा कर दिओ बच्चों। किन्नियां संख्यावां ने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नाल डिवाइड कर देना। ठीक है, जो डिवाइड करूंगे तो आंसर ਇਹਦਾ बच्चों 5 आऊगा। देखो 3 जमा 1 4, 4 जमा 5 9, 9 जमा 7 9 ते जमा 7 16, 16 ते 9 किन्ने हो गए 16 ते 9 25। ठीक है, बच्चों नूं 5 नाल डिवाइड किया, 25 बटा 25 कितना आ गया, 25 बटा 5 कितना आ गया 5। ठीक है, तो आंसर जिहड़ा वो 5 आएगा। ओके जी, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 3.2। सारी एक्सरसाइज बच्चों अज असीं कर लईए। इनू हुण अपनी कॉपीज़ के उपर तुसीं लिख लेना है। थैंक यू। इनू रिवाइज करना है सारा।